in this video, we will continue with the third part, which is adding asynchronous behavior and adding priority based processing. Now, it is very important and I will say one of the most coolest part of the series. So, we will learn about कैसे कोई भी synchronous work को in NLD we can move it to asynchronous, है ना? और we will do it in a way that can be used not just for notification but for any sort of asynchronous work for any LLDs. So we'll learn in this piece of video. Okay. So let's just look at the current code and see how we can fix that. So if you see this piece of code that we wrote, यहाँ पे problem ये है कि if you see the method send notification and you see the line number 128, यहाँ पे जो notification sender dot send, this is synchronous in nature. अब इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम ये है कि until you complete the whole request, the client will wait. Why? Because send notification का execution जब तक खत्म नहीं होगा, the response will not end, right? So प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ तक उसको वेट करना पड़ेगा. The client has to wait till the whole response, the whole processing is done. And this is something that we want to avoid. We want to make it asynchronous. So how do we do that? Before that, there is one more issue. What is the other issue? If you don't make this asynchronous, it's not just कि one client is waiting. This basically means कि आपका जो throughput है वो कम हो जाएगा. Why? Imagine you have many requests coming, but problem क्या है कि आपके जो threads हैं, request के threads हैं, they are waiting for this processing to end, and because of that, the thread are getting exhausted, and you are not able to accept new request. तो इससे आपका throughput भी बहुत कम हो रहा है. So that is why it's a very important problem to solve. So we will solve this by adding asynchronous support and also adding the priority based processing. This is the second part of the same video. Don't worry. So जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आए जहां हमको asynchronous behavior में मूव करना है, we have some options like we can use some frameworks, correct? Like जो भी आप framework use कर रहे हो, Springboard, Dropvisit, these all provide us with some annotations. But in an NLD that is not expected. You should not do that. आपको LLD में you have to create your own implementation of adding asynchronous support. आपको मल्टी थ्रेडिंग का आइडिया होना चाहिए. आपको in whatever language you work, right? If you work in Python, if you work in JavaScript, or if you work in Java or Scala, you have to know the packages that provide us with this concurrency support. So we have to use that to solve this. Don't worry, जो हम लोग अभी करने वाले हैं वो इतना easy है and इतना extensible है, you can do it in any language. So don't worry about it. So let's just move to the whiteboard about how we can approach or convert this synchronous into asynchronous code. Okay, so let me explain. So हमको क्या करना है? हमको देना है asynchronous support. Okay, कैसे करना है? So what we'll do is, the problem here is कि आपके जो steps हैं, steps 1, steps 2, steps 3, in the send notification method, right? उसमें प्रॉब्लम ये है कि one of the step is time consuming. कौन सा वो स्टेप है? जहां पे आप कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन को कॉल कर रहे हो. लेट्स से यू आर कॉलिंग SMS sender डॉट सेंड. नाउ इससे प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से if this is taking 5 seconds, then until all these operations are completed, client is still waiting. So this is the issue. तो इसका सोल्यूशन क्या है? मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन क्या है? So the solution is move the work to threads, या बोलें कि बैकग्राउंड में कर सकते हैं. व्हाट इज द सॉल्यूशन? डू दैट वर्क इन बैकग्राउंड. सो ये जो SMS sender डॉट सेंड वाला जो वर्क है, इसको हम बैकग्राउंड में करते हैं. एंड व्हाट दिस विल डू इज कि इसको हमने बैकग्राउंड में कर दिया, तो सिर्फ हमको टाइम कितना लग रहा है? द क्लाइंट हैज टू वेट फॉर स्टेप 1 एंड स्टेप 2, एंड दिस इज हैपनिंग इन बैकग्राउंड, राइट? नाउ how to do this in background? I will write how to do it in background. So this is the ask, right? बहुत, अब मेरे को पता है कि थ्रेड्स मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट डोंट वरी, ये सोल्यूशन बहुत ईजी है. सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज सिंपल. सोल्यूशन इज you create a queue.
ऑफ कोर्स दिस इज एन इन मेमोरी क्यू, ठीक है। और जब भी तुमको कुछ वर्क मिले, सो जैसे हमारा वर्क क्या था कि सेंड नोटिफिकेशन, तो हमने क्या किया, वैलिडेट किया, अभी ये हमने मेन थ्रेड में वैलिडेट किया, डीबी सेव ये भी मेन थ्रेड में वैलिडेट किया। अब उसके बाद जो मेन यहाँ पे जो सेंड वाला काम था, राइट, सेंड दिस दिस वर्क, राइट, वी विल डू इन क्यू, सो वी विल एनक्यू दिस, एनक्यू द वर्क, एनक्यू कर देंगे। और मतलब ये क्या, और सीधे आप फिर कहां पहुंच जाओगे, आप फोर्थ स्टेप पे आ जाओगे, एग्जिट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्यू में यू हैव टू सबमिट द टास्क, यू जस्ट सबमिट वट एवर यू वांट टू डू इन बैकग्राउंड, आप उसको क्यू में डाल दो। उसके बाद क्यू में डालने के बाद यू स्टिल हैव टू डू द वर्क, राइट। सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज you have to create some threads. So I will call the threads as worker 1, worker 2, worker 3. ये जो वर्कर्स हैं, राइट, ये कंज्यूम करेंगे आपकी क्यू को। तो अब आपका फ्लो कैसा हो जाएगा, वट एवर हैवी वर्क यू वांट टू डू जस्ट एड इट टू द क्यू, और वर्कर्स उसको कंज्यूम कर लेंगे एंड वर्कर्स विल डू द जॉब। अब वर्कर्स क्या करेंगे, वर्कर्स मींस थ्रेड्स, दे विल डू द सेंड कॉल टू द वेंडर, ठीक है, सेंड। इससे क्या हो गया, योर या जो आपका मेन थ्रेड था, द मेन थ्रेड, इट इज नाउ, इट डज नॉट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेंड इट। ये सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ क्यू करेगा, इट विल जस्ट एनक्यू द वर्क एंड एग्जिट। दिस इज द अप्रोच। क्या करना है, हमको क्यू बनाना है और उसके और वर्कर्स बनाने हैं जो क्यू को कंज्यूम करेंगे। दिस इज द आइडिया। अब इसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इन जावा। ओके, लेट्स मूव टू द आईडी नाउ, डोंट वरी। सो सबसे पहले लेट मी क्रिएट अ क्यू, मैं अभी क्यू क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। एंड क्यू के लिए मैं एक सेपरेट फाइल बनाऊंगा, आई डोंट वांट टू राइट हियर, सो आई विल से नोटिफिकेशन क्यू, ठीक है। एक क्लास दिख रही है नोटिफिकेशन क्यू। अब एक काम करते हैं, इस नोट अब क्यू कौन से यूज करना है, तो आई विल यूज ब्लॉकिंग क्यू ऑफ नोटिफिकेशन। मेरी क्यू क्या क्या रखेगी खुद के अंदर, इट विल बी अ क्यू ऑफ नोटिफिकेशंस। तो जो भी नोटिफिकेशन भेजना है उसको क्यू में डाल दो, कोई वर्कर आएगा उस क्यू से कंज्यूम करेगा और नोटिफिकेशन के अंदर से चैनल निकाल के इट विल डू द वर्क। सो मैंने ये क्यू बनाया एंड लेट्स इंस्टांशिएट दिस क्यू। हम लोग यूज करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन विल यूज लिंक्ड ब्लॉकिंग क्यू। अब ये लिंक्ड ब्लॉकिंग क्यू क्या है और ये ब्लॉकिंग क्यू क्या है, यहाँ पे हम नॉर्मल लिंक लिस्ट क्यू नहीं यूज कर रहे हैं एज अ क्यू। द रीजन इज कि क्योंकि हमारा आज क्या है कि हम मल्टीपल वर्कर्स रहेंगे, राइट। सो देयर आर मल्टीपल थ्रेड्स दैट विल बी कंज्यूमिंग। तो यहाँ ये जो तो हमको क्यू ऐसा यूज करना है, एंड क्यू इज अ शेयर्ड रिसोर्स हियर, मल्टीपल थ्रेड्स आर वर्किंग ऑन इट, सो इट हैज टू बी थ्रेड सेफ। एंड द थ्रेड सेफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू इज योर ब्लॉकिंग क्यू। तो आप लिंक ब्लॉकिंग क्यू यूज करो, ये थ्रेड सेफ रहती है। और ये ब्लॉकिंग का मतलब एक चीज और है, इमेजिन like if I go to the whiteboard again, imagine ये जो queue है, queue के अंदर अभी कोई आइटम नहीं है, right, there is no message and the worker thread वो तो स्पॉन हो गया है, so it is trying to poll। अगर वो लगातार पोल करता रहे जब तक उसके अंदर मैसेज नहीं है, तब तो आपका थ्रेड वेस्ट हो रहा है। सो ब्लॉकिंग क्यू व्हाट इट डज इज इट ब्लॉक्स द थ्रेड्स फ्रॉम दैट। तो जैसे ही उसने लेट्स से अ वर्कर ट्राई टू कंज्यूम समथिंग एंड द क्यू डिडंट हैव एनीथिंग, इट वाज एम्प्टी, इट विल गो टू स्लीप। And as soon as some messages are added to the queue, that thread or that worker is woken up। ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, दिस इज प्रोवाइड बाय दिस लिंक्ड ब्लॉकिंग क्यू, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ ब्लॉकिंग क्यू। इट इज थ्रेड सेफ एंड इट ऑल्सो ब्लॉक्स द थ्रेड। ये हमारा idea है for choosing this queue, and you can also read much more about it in by searching on it, it's fine। let's move back to the id again। बहुत ही सिंपल, एक नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर ही हम यूज कर रहे हैं, राइट, कुछ बड़ी चीज नहीं कर रहे हैं। अब ठीक है, क्यू के अंदर हमको क्या सपोर्ट करना है कि इसमें मैसेज डाल दो और इसको मैसेज कंज्यूम कर लो, ठीक। विल क्रिएट दैट, आई विल से पब्लिक वॉइड पुश, हाँ पुश इज गुड। और क्या लेगा ये, एक नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट लेगा एंड विल जस्ट एनक्यू दैट। कैसे एनक्यू करेंगे, दिस डॉट क्यू डॉट ऑफर नोटिफिकेशन। ऑफर इज same as that, इसे कुछ there are some like this is a distinction but you can
दैट इज नॉट अ पर्व्यू ऑफ दिस वीडियो। और एक मेथड होगा जो आपके कंज्यूमर्स यूज करेंगे। अच्छा, ये यूज करेगा कौन? ये पब्लिशर यूज करेगा, जो कि आपका मेन थ्रेड होगा, ठीक है। और कंज्यूमर कौन? जो आप हम वर्कर्स बनाएंगे, राइट, दे विल कॉल दिस बिलो मेथड विच विल से पब्लिक नोट, क्या रिटर्न करेगा? नोटिफिकेशन रिटर्न करेगा। हम इसका नाम रखते हैं टेक, या विल से पोल। पोल और अच्छा नाम है, ठीक है। क्या रिटर्न करेगा ये करेगा, रिटर्न करेगा रिटर्न दिस डॉट क्यू डॉट, there is poll also, there is take. I think let's use take. Let's just see one thing. What does take do? Retrieves and removes the head of the queue, waiting if necessary unless an item becomes available. हाँ, and returns the head of the queue interrupted if interrupted while waiting. हम ये, और poll क्या करता है? What is the difference between take and poll? Let's see. Retrieves and removes the head of the queue, waiting up to the specific amount of time if necessary for an element. The head of the queue or null is specified to wait before the element is available. Cool. Problem नहीं है, दोनों में प्रॉब्लम नहीं है। सो इसको टाइम चाहिए, राइट। सो व्हाट विल डू इज, नहीं, इसको इंटरप्टेड एक्सेप्शन हमको ऐड करना पड़ेगा। लेट्स ऐड दैट, ठीक है। सो हमने एक सिंपल हमने एक क्यू बना ली। दिस इज द पार्ट वन इज डन। अब हमको एक कोड लिखना है जो इसमें क्यू में डाले, बेसिकली जो ये मेथड यूज करेगा, और हमको वर्कर्स बनाने हैं जो इसको कंज्यूम करेंगे। तो द इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी इज द कंजम्पशन पार्ट। पहले हम लोग ना वो बना लेते हैं, ठीक है। सो आई विल क्रिएट वन मोर क्लास। आई विल से, ध्यान से देखना, ठीक है, नोटिफिकेशन वर्कर, ये बहुत अच्छा है। अब मैंने क्या बताया था, ये जो नोटिफिकेशन वर्कर, ये बेसिकली थ्रेड्स है, राइट। थ्रेड्स बनाने के दो तरीके होते हैं इन जावा। आइदर यू इंप्लीमेंट द रनेबल इंटरफेस और यू एक्सटेंड द मेन थ्रेड। विल डू द इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच, विल से इम्प्लीमेंट्स रनेबल। रनेबल इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि आप एक रन मेथड इंप्लीमेंट करोगे। तो लेट्स इंप्लीमेंट द मेथड्स। अब उसका डेफिनेशन क्या है, डोंट वरी अबाउट इट, अभी उससे हमको मतलब नहीं है। अच्छा बताओ, नोटिफिकेशन वर्कर को किस किस का डिपेंडेंसी है? इस वर्कर को हमको क्या क्या देना है? इस वर्कर को पहली बात तो पूरे चैनल्स पता हो, चैनल्स के इंप्लीमेंटेशन पता हो, और इसके पास एक चीज और क्या हो, इसके पास क्यू का एड्रेस हो, इसके पास क्यू का रेफरेंस हो, ताकि वो क्यू यूज कर सके, राइट। सो वी विल प्रोवाइड दैट। हम डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसको क्यू दे देते हैं। तो प्राइवेट नोटिफिकेशन क्यू क्यू, ठीक है। व्हाट इज द अदर थिंग दैट इट रिक्वायर्स? अब एक बार बताइए, इसको चाहिए कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस चैनल्स। विच क्लास वी क्रिएटेड जिसके पास ये पूरी चीजें थी? वी क्रिएटेड अ फैक्ट्री जिसके अंदर अगर आप चैनल का नाम बताओ तो इट कैन गिव अस द टाइप, सो इट विल गिव अस द इम्प्लीमेंटेशन। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वो फैक्ट्री यहाँ पे यूज कर लेते हैं। विल से प्राइवेट नोटिफिकेशन फैक्ट्री, सेंडर फैक्ट्री, हम लोग ये बना, ठीक है। अब इसका हम लोग डाल देते हैं, कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज कर देते हैं। हमने इसको क्यू भी दे दिया, हमने इसको फैक्ट्री भी दे दिया। वी गॉट द क्यू, वी गॉट द फैक्ट्री। अब ठीक है, अब ये क्या करेगा? अब व्हाट दिस विल डू इज, लेट्स ऐड अ, ओके, ये क्या करेगा, वाइल, ये हमेशा चलना चाहिए, राइट, ये कभी बंद नहीं होगा, तो ट्रू। अब क्या करना है, ये क्या करेगा, ये करेगा इस क्यू से एलिमेंट निकालने का ट्राई करेगा। सो फॉर दैट विल से दिस डॉट क्यू डॉट पोल, ठीक है। और डोंट वरी, और ये क्या रिटर्न कर देगा हमको, नोटिफिकेशन। सब लोग एरर हैंडल करेंगे, दिक्कत नहीं है, एक्सेप्शन वहां पे हैंडलिंग करनी है। सो लेट अस ऐड दिस इनसाइड अ ट्राई कैच एंड दिस इज सॉर्टेड, ठीक है, ये कर दिया हम लोगों ने। और एक इंटरप्टेड एक्सेप्शन दे देते हैं, और अगर मल्टीपल कैच ब्लॉक डालते हैं, और कुछ और अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो वो भी दे देते हैं। यहाँ पे मैसेज डाल देता हूँ कि e.getMessage, और इसमें भी हम लोग ये डाल देते हैं, कूल। अब ठीक है, हमने पोल किया। अब यू टेल मी व्हाट विल डू आफ्टर पोलिंग। हमारे पास नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर से निकाल लेते हैं चैनल। उस चैनल का हम इंप्लीमेंटेशन निकालेंगे फ्रॉम दिस फैक्ट्री, एंड देन विल कॉल द सेंड मेथड। करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं चैनल, नोटिफिकेशन चैनल, ये क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन डॉट चैनल। अब इस चैनल का हमको इंप्लीमेंटेशन चाहिए, तो नोटिफिकेशन सेंडर इक्वल्स नोटिफिकेशन सेंडर फैक्ट्री डॉट गेट सेंडर। सेंडर के अंदर नाम रख देते हैं, चैनल भेज देते हैं। वी गॉट द इम्प्लीमेंटेशन हियर, कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन मेरे पास यहाँ पे आ गया। बस हमको क्या करना है, अब नोटिफिकेशन सेंडर डॉट सेंड, और यहाँ भेज देते हैं नोटिफिकेशन, डन।
अब क्या हो गया, ये जितना भी हैवी वाला पार्ट था राइट, जो टाइम कंज्यूमिंग था, उसको हमने इस थ्रेड को दे दिया, ये इस थ्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। ठीक है, इतना ही है, इतना ही सिंपल है। क्या है, हमने क्यू बनाई, क्यू को दे दिया वर्कर को, वर्कर क्या करता रहेगा, उस क्यू का रेफरेंस उसके पास है तो उससे बार बार पोल करता रहेगा, उसको जब भी नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट मिलेगा इट विल गेट द अप्रोप्रिएट इंस्टेंस एंड कॉल द सेंड मेथड। ये हमने डेलीगेट कर दिया वर्क किसको, एक थ्रेड को। लेकिन अभी हमने मेन से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग नहीं करी। सो द नेक्स्ट पार्ट इज, सो वी हैव क्रिएटेड द क्यू, वी हैव क्रिएटेड द कंज्यूमर, बट वी हैव क्रिएटेड द सिंगल कंज्यूमर। अभी ये भी चीजें हैं, ठीक है। अब एक काम करेंगे, एक तो मल्टीपल कंज्यूमर्स बनाएंगे, बेसिकली मल्टीपल नोटिफिकेशन वर्कर्स बनाएंगे, एंड द अदर थिंग इज वी विल हैव टू रिमूव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द ओरिजिनल सर्विस। पहले एक बार ओरिजिनल सर्विस में जाते हैं, देखते हैं कि कैसे वहां पे इंप्लीमेंटेशन है। सो दिस वॉज अवर ओरिजिनल सर्विस, इसके पास फैक्ट्री थी, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, अब ये सेंड नोटिफिकेशन में इट वाज डूइंग द वैलिडेशन, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, बट इसके बाद ये चैनल गेट करना, नोटिफिकेशन भेजना, ये उसका काम नहीं है, इसको हमको यहाँ से रिमूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स रिमूव दिस। अब उल्टा क्या होगा यहाँ पे, ये सिर्फ क्या करेगा, इट विल ओनली डू एन क्यू। मतलब क्या, एन क्यू का मतलब क्या है कि इट विल एड नोटिफिकेशन टू द क्यू। समझ आया? अच्छा, नोटिफिकेशन किस में ऐड करना है, क्यू में। क्यू में कैसे ऐड करेगा, पहले क्यू का इसको रेफरेंस चाहिए, इसका मतलब इट नीड्स द डिपेंडेंसी ऑफ व्हाट, क्यू। ऐड कर लेते हैं, प्राइवेट नोटिफिकेशन क्यू, ये डाल दिया, और क्यू भेज देते हैं, नोटिफिकेशन क्यू। कंस्ट्रक्टर में भी डाल देते हैं नोटिफिकेशन क्यू, डन। और लेट्स जस्ट क्विकली ऐड दैट, ठीक है, ये हो गया हमारा, क्यू हमने दे दिया। और अब क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे हमने कोड सब रिमूव कर दिया राइट। तो सेव करने के बाद हमको बस क्या करना है, एन क्यू करना है राइट। तो क्या करेंगे, दिस डॉट क्यू डॉट नोटिफिकेशन क्यू डॉट क्या करना है, पुश। पुश क्या करना है, नोटिफिकेशन, डन। अब आप आपके जो मेन थ्रेड है या जो मेन नोटिफिकेशन सर्विस, उसका काम सिर्फ क्या है, सिर्फ क्यू में डालना, सेंड करना नहीं है उसका काम, सिर्फ वो क्यू में डालेगा। अब क्यू में डालने से क्या हो जाएगा, जो 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 वर्कर्स होंगे जो क्यू को लिसन कर रहे हैं, बार बार पोल कर रहे हैं, वो उसको लेके सेंड कर देंगे। बट अभी हमने वो चीज़ अभी स्टार्ट नहीं करी है, वी हैव नॉट क्रिएटेड दोज वर्कर ऑब्जेक्ट्स, अभी तो हमने सिर्फ उसकी क्लास डिफाइन करी है। सो लेट अस फिक्स दैट। तो वो कैसे करेंगे, अब हमको क्या करना है, क्यू में डालने का काम तो हमने कर दिया, अब हमको क्या करना है, इन वर्कर्स को स्टार्ट करना है। वर्कर को स्टार्ट कैसे करते हैं, लेट्स लर्न दैट। सो फॉर दैट व्हाट विल डू इज, दिस वॉज अवर वर्कर राइट, और ये तो एक वर्कर है, हमको ऐसे इसके मल्टीपल हमको बनाने हैं। तो एक तरीका क्या है कि आप चाहो, मैं एक काम करता हूँ, एक सिंपल तरीका, सिंप्लिसिटी के लिए पहले एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लेट जस्ट डू, अब ये ना हम लोग हाथ से बना लेते हैं, जैसे हमने ये बनाया राइट। तो व्हाट विल डू इज, यहाँ पे इसके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम वो नोटिफिकेशन वर्कर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। so, कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये मैंने, ये बेसिकली एक थ्रेड ही है राइट, नोटिफिकेशन वर्कर इज नथिंग बट अ थ्रेड। सो वी क्रिएटेड अ थ्रेड, और थ्रेड को हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना, ये हमने थ्रेड स्टार्ट कर दिया। एक काम करते हैं, लेट्स ऑल्सो ऐड सम लॉग्स, मैं लॉग डाल देता हूँ, वर्कर स्टार्टेड, ठीक है, स्टार्टेड रनिंग। और एक काम करते हैं, वर्कर स्टार्टेड रनिंग यहाँ नहीं डालना चाहिए, वर्कर स्टार्टेड रनिंग चाहिए हमको रन के अंदर, और वर्कर की आईडी प्रिंट करा लेते हैं। कैसे करेंगे, दिस डॉट सॉरी थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट नेम, ठीक है, हम उसका नाम प्रिंट कर लेंगे, ठीक है, ये वो यहाँ ये स्टार्ट हो गया। तो इफ़ यू गो बैक टू द सर्विस अगेन, हम लोगों ने क्यू इनिशियलाइज किया और हमने एक थ्रेड स्टार्ट कर दिया। अब थ्रेड स्टार्ट करने के बाद क्या करना है, और एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट 2 थ्रेड्स, एक थ्रेड नहीं, हम इसके 2 थ्रेड बनाएंगे। लेट्स क्रिएट 1 मोर थ्रेड, तो मज़ा आएगा। लेट्स क्रिएट थ्रेड 2 न्यू थ्रेड, इसका वर्क भी दे देते हैं नोटिफिकेशन वर्कर, एंड विल से थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट, थ्रेड 2 डॉट स्टार्ट, ठीक है। ये हम लोगों ने ऐसे बनाया, हमने वर्कर स्टार्ट कर दिए हैं, और हम अब क्या कर रहे हैं, क्यू में मैसेज डाल रहे हैं, ठीक है। लेट्स ऐड 1 मोर लॉगर, जब भी क्यू में मैसेज आए तो हम प्रिंट डाल सकते हैं, एडिंग मैसेज टू क्यू
और क्या कर सकते हैं हम, नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट डाल देते हैं। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं टेकिंग कंज्यूमिंग मैसेज फ्रॉम क्यू बाय वर्कर। वर्कर का नाम भी प्रिंट करा लेते हैं। वर्कर का नाम कैसे मिलेगा, जो भी यहाँ पे थ्रेड है उससे मिल जाएगा। तो थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। गुड, दिस लुक्स गुड। अब एक काम करते हैं, इसको चला देते हैं। हमारा काम हो गया है, अभी हम और ऑप्टिमाइज करेंगे, बट द वर्क इज डन। एसिंक्रोनस सपोर्ट हो गया। क्यों, हमने मेन थ्रेड से क्या किया, हमने सेंड करने वाला काम खत्म किया एंड वी जस्ट एनक्यू टू द क्यू, और वर्कर्स बना दिए और वो क्यू को लिसन करते रहते हैं। करेक्ट। सो लेट जस्ट सी वन मोर थिंग। हमने, हाँ देखो एक चीज़ और, जब हमने वर्कर इनिशियलाइज किया, वर्कर को क्या चाहिए था, क्यू चाहिए था और फैक्ट्री चाहिए थी। अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यू दोनों की सेम हो, ऐसा नहीं कि सबकी अलग अलग क्यू हो। तो वो कैसे हो रहा है, कंस्ट्रक्टर में नोटिफिकेशन सर्विस को जो भी क्यू मिल रही है, दैट सेम क्यू इज बीइंग असाइंड फॉर नोटिफिकेशन सर्विस एज वेल एज फॉर योर वर्कर। ऑल द वर्कर्स आर यूजिंग द सेम क्यू। ठीक है, इसको फिक्स कर देते हैं। अब नोटिफिकेशन सर्विस को क्या चाहिए, नोटिफिकेशन सर्विस को चाहिए फैक्ट्री और क्यू चाहिए, राइट। हम फैक्ट्री तो पहले बना चुके थे, क्यू बना लेते हैं जल्दी से। नोटिफिकेशन क्यू, मतलब इसका इंस्टांस बना लेते हैं, इक्वल टू न्यू नोटिफिकेशन क्यू। कैपेसिटी चाहिए उसको नोटिफिकेशन क्यू को, एक बार देख लेते हैं फिर से। कैपेसिटी दे देते हैं, लेट्स गिव द कैपेसिटी एज 10, प्रॉब्लम नहीं है हमको। और यहाँ पे हम क्यू भेज देते हैं। डन, ठीक है। लेट्स डू द एग्जीक्यूशन नाउ। सबसे पहले क्या हुआ, हमारा एक वर्कर थ्रेड चालू हुआ, सेकंड वर्कर थ्रेड चालू हुआ। उसके बाद ये दोनों ने, क्योंकि वाइल लूप में दे आर ट्राइंग टू कंज्यूम मैसेज, करेक्ट, दोनों ने ट्राई किया। और ये मतलब ये, एक सेकंड रुको ना, एडेड मैसेज टू द क्यू और नोटिफिकेशन सेंड। अच्छा देखो, मैसेज सेंड भी चले गया, और किसने कंज्यूम किया था, थ्रेड 0 ने किया था कंज्यूम। अब अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं कुछ और सिंपल लॉग्स डाल देता हूँ ताकि और क्लैरिटी आ जाए। सो व्हाट विल डू इज, विल गो टू द नोटिफिकेशन वर्कर एंड इंस्टेड ऑफ यहाँ पे हम, हाँ नहीं, ये यहाँ पे तो डालना चाहिए, विल ऐड वन मोर मैसेज वाइल, हाँ यहाँ पे डालते हैं, वर्कर कंज्यूम्ड मैसेज। ठीक है, ये बेटर है कि ये ऐसा हो गया। और हम क्यू से वो लॉग्स रिमूव कर देते हैं, इनका एडेड का डाल देते हैं और कंजम्पशन का रहने देते हैं। ठीक है, एक बार रिस्टार्ट करते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी इससे। और लेट जस्ट ट्राई टू हिट इट अगेन। देखो क्या होता है, हमने वर्कर थ्रेड स्टार्ट किए, ठीक है। अब उसके बाद नोटिफिकेशन आया, डीबी में डाला मेन थ्रेड ने, सेव कर दिया। उसके बाद उसने क्या डाल दिया, क्यू में ऐड कर दिया, इस नोटिफिकेशन को क्यू में ऐड कर दिया। और और क्या हुआ उसके बाद, फिर वर्कर ने कंज्यूम किया, किसने कंज्यूम किया, थ्रेड 0 ने, ये फर्स्ट वाला जो वर्कर है ना, उसने कंज्यूम करा और उसने मैसेज भेज दिया, सेंडिंग एसएमएस। बात समझ आए कैसा हो रहा है। सो वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू एसिंक्रोनस बाय यूजिंग क्यूज। ठीक है, हमने क्यू बनाया, क्यू के वर्कर्स बनाए। वर्कर कैसा दिखता है, वर्कर इज नथिंग बट अ थ्रेड, राइट, इंप्लीमेंट का रनेबल, और उसके पास क्यू का रेफरेंस है, फैक्ट्री का रेफरेंस है, वो हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसको एसिंक्रोनस सपोर्ट दे दिया। नाउ देयर इज लाइक वी कैन डू सम मोर ऑप्टिमाइजेशन हियर, लाइक इफ आई कैन शो, ये जो हम मैनुअली यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे थ्रेड्स बना रहे हैं, राइट, लाइक थ्रेड 1 थ्रेड 2 कहाँ गया, हाँ ये थ्रेड 1 थ्रेड 2, ये थोड़ा सा मैनुअल वर्क है एंड दिस इज रॉन्ग। व्हाई आर वी क्रिएटिंग ऑलवेज 2 थ्रेड्स, करेक्ट। सो इसको ना फ्लेक्सिबल करना चाहिए, जितना हमको 5 बनाने हो 10 बनाने हो, उसका एक आपको एक और यूटिल बनाना चाहिए, एक मैनेजर बनाना चाहिए बेसिकली। तो हम क्या कर सकते हैं, एक थ्रेड का मैनेजर बना सकते हैं, और वहाँ पे इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग थ्रेड्स आवरसेल्फ, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एग्जीक्यूटर सर्विस यूज करेंगे। एग्जीक्यूटर सर्विस क्या करता है, आपको हेल्प करता है इस थ्रेड वगैरह मैनेज करने में खुद से, विदाउट क्रिएटिंग दिस थ्रेड्स। सो वी विल क्रिएट दैट एंड वी विल यूज दैट। तो उसके एक सिंपल क्लास बना लेते हैं। आई विल से नोटिफिकेशन वर्कर मैनेजर। ठीक है, नोटिफिकेशन वर्कर मैनेजर, ये क्या करेगा, इसके पास क्या होगा, अब ध्यान से, अब इसका मतलब क्या है, ये बनाएगा, क्या बनाएगा, ये वो
थ्रेड्स को इनिशियलाइज करेगा। अच्छा, उन थ्रेड्स को क्या चाहिए, वर्कर्स को क्या चाहिए था, वर्कर्स को चाहिए था क्यू और फैक्ट्री, तो इसको भी चाहिए होगा सो दैट इट कैन गिव इट टू देम। सो व्हाट विल से प्राइवेट विल से नोटिफिकेशन क्यू और क्या चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, राइट। प्राइवेट नोटिफिकेशन सेंडर फैक्ट्री और एक चीज़ और चाहिए कि कितने आपको कंकरेंसी चाहिए, राइट। सो विल से प्राइवेट इंट वर्कर्स, कितने वर्कर्स हमको चाहिए। जल्दी से इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। पब्लिक नोटिफिकेशन वर्कर मैनेजर, ठीक है। ये हमने अच्छा ठीक है, क्यू को क्यू असाइन कर दिया, फैक्ट्री को फैक्ट्री, वर्कर्स फिक्स कर दिए। अब यहाँ पे क्या चाहिए, अब क्योंकि हमको क्या करना है, हमको इसको एसिंक्रोनसली हमको बनाना है। क्या बनाना है, वी हैव टू क्रिएट दिस थ्रेड्स, हाथ से नहीं बनाना है, यूजिंग एग्जीक्यूटिव सर्विस बनाना है। तो इसको एक चीज़ और चाहिए, इसकी एक डिपेंडेंसी और क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव सर्विस। सो विल से एग्जीक्यूटिव सर्विस, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव सर्विस को इनिशियलाइज कर देते हैं। दिस डॉट एग्जीक्यूटिव सर्विस इक्वल टू एग्जीक्यूटर्स डॉट न्यू फिक्स्ड थ्रेड पूल बनाएंगे। एक थ्रेड पूल हम बनाने वाले हैं और कितने फिक्स रूल होंगे, जो हमारे वर्कर्स हैं, ये वर्कर्स का काउंट, जैसे वर्कर्स अगर पाँच काउंट अगर हम भेजे तो उतने का पूल बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, एक मेथड बनाएंगे पब्लिक वॉइड स्टार्ट, सिंपल मेथड है, ठीक है, स्टार्ट। ये स्टार्ट मेथड क्या होगा, जो हमारा मेन नोटिफिकेशन सर्विस है ना, वो सिर्फ स्टार्ट मेथड कॉल करेगी। उससे क्या हो जाएगा, ये जो हमारा नोटिफिकेशन वर्कर मैनेजर है, ये वर्कर को स्पॉन करेगा, वर्कर को बनाएगा, बेसिकली थ्रेड बनाने वाला काम अब ये करेगा। कैसे होगा देखो। सो व्हाट विल डू इज, हम एक लूप लगाएंगे आई लेस देन वर्कर्स, ठीक है। जितने जितने वर्कर्स हैं उतने बार हमको एक वर्कर बनाना है। जैसे अगर वर्कर आ रहे हैं 5 तो हमको 5 वर्कर्स बनाने हैं। तो हम व्हाट विल डू इज, विल क्रिएट द वर्कर, देखो नोटिफिकेशन वर्कर, ठीक है, हमने वर्कर बनाया और बस क्या कर दिया, एग्जीक्यूटर डॉट सबमिट कर दिया। वर्कर बेसिक नथिंग बट इट्स अ टास्क, राइट। तो आप टास्क को क्या कर सकते हो, यू कैन ऐड द टास्क एंड सबमिट टू द एग्जीक्यूटिव सर्विस। अब क्या होगा, एग्जीक्यूटिव सर्विस के पास ये 5-6 टास्क मिल गए, अब वो इनको स्टार्ट कर देगा। जैसे अगर आप सबमिट का मेथड देखोगे, सबमिट क्या बोलता है, सबमिट्स अ रनेबल टास्क फॉर एग्जीक्यूशन, और यही तो है, एक ये रनेबल टास्क है। अब हमने उसको भेज दिया, सबमिट करा दिया। अब इसको हमने 5 वर्कर्स बना के भेज दिए। अब ये 5 वर्कर्स की लाइफ स्टाइल हर चीज वगैरह कौन करेगा, मैनेज करेगा, नोटिफिकेशन वर्कर मैनेजर। अब बस हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको यूज करेंगे इनसाइड नोटिफिकेशन सर्विस, ठीक है। सो ये जो इंडिविजुअल वर्कर बना रहे थे, इसको आप काटो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो कितना सिंपल है। लेट्स डिपेंडेंसी भी वहां मत बनाओ, यहीं पे बना लेंगे। क्या बनाएंगे, नोटिफिकेशन वर्कर मैनेजर इक्वल्स न्यू वर्कर मैनेजर। उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए क्यू, उसको चाहिए फैक्ट्री हमारे पास है, और उसको चाहिए कितने वर्कर्स। मैं इस बार कितने वर्कर्स बनाऊंगा पता है, मैं बनाऊंगा 5। आई विल से कि 5 बनाओ, तुम 5 थ्रेड्स बनाओ, और बस क्या करना है, वर्कर मैनेजर डॉट स्टार्ट, सिंपल। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूं, बहुत बेहतरीन रहेगा, देखते हैं। 5 थ्रेड्स बनेंगे इस बार, ठीक है। लेट्स जस्ट सी, एक बार देख लेते हैं। सी वर्कर 1 2 ये 5 थ्रेड्स बने, और एक रिक्वेस्ट चले गया डीबी, एक चले गया क्यू में, मेन मेथड ने क्यू में डाल दिया। और किस वर्कर ने कंज्यूम करा, ये इस पर्टिकुलर वर्कर ने थ्रेड ने कंज्यूम करा, उसने मैसेज भेज दिया। अब एक काम करते हैं, लेट्स ऐड फ्यू मोर मैसेजेस। एक काम करते हैं, यही नोटिफिकेशन 2-3 बार भेज देते हैं। मैंने 4 बार भेज दिया, तो अब क्या होगा, अब क्यू में 4 नोटिफिकेशंस जाएंगे और वो कंज्यूम हो जाएंगे बाय वेरियस थ्रेड्स। तो देखो ये हमारे थ्रेड स्टार्ट हुए। अब देखो मैसेज एडेड टू द क्यू, मैसेज एडेड, देखो 2 ऐड करने के बाद ही एक कंज्यूम भी हो गया। वर्कर किसने कंज्यूम कर दिया, इसने एक कंज्यूम कर लिया। फिर देखते हैं एक थ्रेड 3 ने भी कंज्यूम कर दिया, थ्रेड 5 ने भी कर दिया, और ये सब पूरा वर्क हो रहा है। सो वी हैव कन्वर्टेड दिस इनटू एसिंक्रोनस। अब आपका जो आपकी क्लास है वो सिर्फ क्या कर रही है, वो सिर्फ एन क्यू कर रही है और कुछ नहीं, इट इज ओनली पुशिंग टू द क्यू। सो वी हैव completed the a very important advancement which was adding the asynchronous support. Now let's move to the next part which is priority based support. Priority based वाला support है, तो or we can, I think it's already a big video, so let's do it in the next video. It will be a small 5-10 minutes video. So thank you, stay tuned for the next.